Mr. President, this Assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. Thank you, Mr. President. दोस्तों जय हिंद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में शायद ही कोई मूवमेंट ऐसा होता है जिसको हम डल मूवमेंट कह सकते हैं और हमेशा इस पर्टिकुलर डोमेन में कोई ना कोई खबर, इंटरेस्टिंग खबर सुनने को मिलती रहती है। अभी आपने सुना जो हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं यूएन में, भाविका जी को, और भाविका जी ने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी हाल में ही यूएन में 79वां यूएन जनरल असेंबली का सेशन ख़त्म हुआ है और यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने आकर अपना रोना धना किया, जैसा कि हमेशा ये करते हैं, और उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया और जो उनकी तरफ जो हमारा कश्मीर है उसके बारे में जिक्र किया कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ या भारत ने कोई ऐसी कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो हम कह सकते हैं रोना धना उन्होंने किया। भारत ने जो उसका जवाब दिया वो अभी आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब हमारे देश की फॉरेन सर्विस की एक बहुत ही यंग ब्राइट फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल दे रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारत का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो कहाँ तक फैला हुआ है और उसका असर कहाँ तक है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यूएन एक इम्पोर्टेंट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्योंकि लगभग
विश्व के सारे देश यूएन के मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर जो बात कही जाती है या जो भी यहाँ पर जिन मसलों को डिस्कस किया था उसका अपना एक महत्व है। तो यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान ने अगर अपनी तरफ से, जैसे कि हमेशा वो करता है, उन्होंने कोशिश की, पर एक जो अलग बात इस बार हुई है, एक कंट्री थी टर्की, जो कि हमेशा ही यूएन सेशन में पाकिस्तान का साथ देती थी और वो कश्मीर शब्द को उछाला करते थे। टर्की की जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, इस बार पाकिस्तान को वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिला है। और इस बार पूरी जो उसमें जो उन्होंने अपना स्पीच दी टर्की के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने कहीं कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया फ़लस्तीन का, गाज़ा का, पर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में इस बात का चर्चा है कि एक ऐसी कंट्री थी जो इसको डिस्कस करती थी, कश्मीर को इनका नाम लेती थी, पर इस बार उन्होंने भी नाम नहीं लिया। ये भी एक इंडिकेटर है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये भी एक इंडिकेटर है एक देश के कॉन्फिडेंस का, एक देश के बढ़ते हुए ग्लोबल फुटप्रिंट का, कि एक देश के प्रधानमंत्री ने जो फालतू के एलिगेशंस लगाए हैं उसका जो इफ़ेक्टिवली और कॉन्फिडेंस से जवाब जो दिया जा रहा है, वो एक बहुत ही नया ऑफिशियल जो ये लेडी हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल की लेडी हैं, इनकी तरफ से उसका जवाब दिया गया। तो इससे पता लगता है कि ग्लोबली जो है भारत की जो पहुंच है, या जिसको हम कहें जो नेटवर्किंग है, जो जिन हम ग्लोबल नेटवर्क्स का, प्लेटफॉर्म्स का या एसोसिएशंस का हिस्सा हैं, ग्रुप्स का हिस्सा हैं, वहाँ पर कितनी इफ़ेक्टिवली भारत अपने अपने जो स्टांस हैं उनको सामने रख रहा है, और उनको कितना इफ़ेक्टिवली वो बाकी के जो ग्रुप्स हैं उन तक पहुँचा रहा है। भारत यूएन में परमानेंट सीट का दावेदार है, सबसे प्रबल दावेदार है। और इस बात को हर बार की तरह इस बार भी फ्रांस, यूके, पोर्चुगल, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव या जो लीडर्स वहाँ पर थे असेंबली में, उन्होंने इस बात को दोबारा से वहाँ पर खुले ढंग से कहा है, और उसका उन्होंने घोषणा की है कि भारत को जापान और जर्मनी के साथ, तीन ये जो कंट्रीज़ हैं, कुछ लोग इसमें ब्राज़ील का नाम भी लेते हैं, तो इनको परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन का। और भारत अब लगभग जितने भी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म हैं, आपने देखा चाहे G20 है, उसके बाद ब्रिक्स है, और उसके बाद जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड है, तो जितने भी जो वर्ल्ड के इफ़ेक्टिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, भारत उसमें या तो बहुत एक्टिव मेंबर है, जैसे कि ब्रिक्स है, उसमें बहुत एक्टिव मेंबर है, या फिर भारत किसी ना किसी रूप में वहाँ पर प्रेजेंट है। भारत आज की तारीख में ऐसे भी अलाइंसेस बना रहा है जो कि रीजनल अलाइंसेस हैं, और कुछ उनमें से ग्लोबल अलाइंसेस भी हैं, रीजनल अलाइंसेस हैं जो भारत ने क्रिएट किए हैं, या भारत उनको इफ़ेक्टिवली लीड कर रहा है। और एक ये इशारा जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गए या यूएसए हो गए, इनको भारत एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहा है, एक इशारा दे रहा है, और वो भी बिल्कुल खुलेआम, या हम कहें कि लगातार, कि अगर भारत यूएन का परमानेंट मेंबर चाहे ना हो, पर भारत आज इस पोजीशन में है कि वो रीजनली और ग्लोबली अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, और वो कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू रीजनल एसोसिएशंस। आप देखेंगे कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी जो हाल में ही ये यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन हुआ, उसके पश्चात एक ग्रुप है, एक फोरम है, जिसको हम कहते हैं IBSA। इसकी चर्चा ज़्यादातर नहीं होती है, और हम में से काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है। सो दिस ग्रुप इज़ बेसिकली इंडिया ब्राज़ील साउथ एशिया डायलॉग फोरम, और ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 2003 में, जिसमें कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, अब ये 3 कंट्रीज़ इसमें एक तो जो
साउथ ग्लोबल है उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये तीनों कंट्रीज। आप देखेंगे कि इधर से इंडिया है एशिया से, फिर ब्राज़ील साउथ अमेरिका की तरफ से है, और जो साउथ अफ्रीका है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है। तो जो साउथ साउथ पोलर वर्ल्ड है उसको ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया आज की तारीख में साउथ ग्लोबल, जो कि लगभग आधा विश्व है, या मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा होगा, उसको आज की तारीख में इंडिया इफेक्टिवली लीड कर रहा है। जितने भी जो प्लेनेट के सदर्न साइड के नेशंस हैं ये सारे उसमें आते हैं, जिसमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और अंडर डेवलप्ड नेशंस भी हैं। तो एक तो इंडिया रिपीटेडली ये मैसेज दे रहा है कि सिर्फ यूरोप या यूएसए की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ही सिर्फ वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स बाकी कंट्रीज़ की भी हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जितनी भी वर्ल्ड लेवल की फॉर्म है उनमें। और इंडिया ऐसे अलायंसेस डेवलप कर रहा है, ऐसे नेटवर्क डेवलप कर रहा है, ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है जहाँ पर वो इफ़ेक्टिवली जो अपनी पोजीशन है उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया आईबीएसए का। आईबीएसए ने अभी हाल में ही जो यूएन सेशन हुआ उसमें तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक जो जनरल असेंबली का सेशन था उसके साथ साथ इस ग्रुप ने मिलकर एक वहाँ पर यूएन में डिमांड रखी कि जितने भी यूएन लिस्टेड टेरर आउटफिट्स हैं उनके ऊपर एक्शन उठाया जाए। और जाहिर सी बात है जब हम यूएन लिस्टेड टेरर आउटफिट्स की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नंबर सबसे पहले आता है। तो क्योंकि एक रीजनल अलाइंस बनाया गया जिसमें कि तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो है इसके ऊपर अपना कंसेंसस जाहिर किया, और उसमें जितने भी पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स हैं जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसा, इन सब का नाम उसमें आया। और जब ये पर्टिकुलर डिमांड वहाँ पर यूएन में रखी गई तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई और काफ़ी उनको इस बात की परेशानी हुई कि देखिए भारत किस ढंग से अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपना जो उसकी पहुँच है, जो उसका असर है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, उसका इस्तेमाल कितना इफेक्टिवली कर रहा है कि यूएन में टेरर आउटफिट्स का नाम लिया गया। और उसके बाद जो है उसमें पर्टिकुलरली ये इंश्योर किया गया कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स हैं जिससे कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म को फैलाता है, उनका नाम उसमें शामिल किया गया और उसको फिर यूएन के सामने रखा गया। तो क्योंकि भारत ने एक अलायंस बना के रखा हुआ है, भारत उसका अहम हिस्सा है आईबीएसए का, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका भारत ने बहुत ये एग्जाम्पल है कि किस प्रकार भारत जो है ऐसे रीजनल अलायंसेस का, जो कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत आज की तारीख में ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूएन में आपकी परमानेंट सीट ना हो तो आप अपना असर बाकी रीजनल अलायंसेस के थ्रू दिखा नहीं सकते। इनफैक्ट हुआ ये है क्योंकि यूएन में रिप्रेजेंटेशन स्क्यूड है, सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जिनको परमानेंट सीट दी गई है, और अभी तक उसका इतने सालों में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। और भारत जैसी जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उनको भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से ही ये जो रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं, रीजनल अलायंसेस हैं, इनको एक रूप मिला है, इनको एक शक्ति मिली है, और भारत इसमें आज की तारीख में एक ढंग से रीजनल अलायंसेस का लीडर है और उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहा है। चाहे आप यहाँ देख लें, एशिया में, आसियान में देख लें, आप ब्रिक्स में देख लें, आप आईबीएसए जैसा मैंने आपको नाम बताया वहाँ देख लें, और इनफैक्ट G20 को तो भारत ने इस साल होस्ट ही किया था। तो ये सारे जितने भी जो रीजनल अलायंसेस हैं और रीजनल ग्रुप्स हैं उसमें भारत की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और इसकी मदद से भारत का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, जो ग्लोबल पहुंच है, उसको इन रीजनल अलायंसेस की वजह से बहुत बल मिला है, और इसको भारत ने बखूबी इस्तेमाल किया और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये एक बहुत अच्छी पहल है, और भारत को इसको और मजबूती देनी पड़ेगी और बल देना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि मुझे लगता है कि
ये सब देखते हुए कि बाकी जो रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने पावरफुल बन रहे हैं, तो भारत को जो यूएन की सीट है, चाइना जैसी कंट्रीज़ भी इन्फ्लुएंस होंगी, मजबूर होंगी भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। इसके साथ साथ ही भारत की एक हमारे देश की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी जो हमारे आसपास के देश हैं हम उनको मदद करने के लिए और उनको साथ में अपने साथ चलने के लिए उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। उनको हम आर्थिक रूप से हो या अ, और भी पॉलिटिकल रूप से हो या जो है जो भी उनको जैसी भी मदद चाहिए, किसी से डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनको हमने फाइनेंशियली कुछ जो है मदद दी हुई है। और चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, जितने भी ये हमारे आसपास के देश हैं इनको हम प्राथमिकता देते आ रहे हैं। और ये क्लियर है इस चीज़ में कि भारत नेबरहुड को पहले देखता है। मालदीव्स है, जैसे अब जैसे मालदीव्स के साथ हमारे संबंध बीच में कुछ चाइना और मालदीव्स की जो नज़दीकी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी समाचार में रहा था ये सब। पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है अब मालदीव्स का जो स्टांस है वो चेंज हो रहा है और वो भारत की इनफैक्ट जो अभी वहाँ के लीडर हैं वो कुछ टाइम में भारत की विज़िट भी करने वाले हैं। तो अ, उसको भारत ने बरकरार रखा हुआ है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। और भारत इफ़ेक्टिवली ये संदेश दे रहा है लगातार कि हम चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं वो हमारे साथ साथ डेवलपमेंट करें, आगे बढ़ें, तो जिसमें कि पूरा रीजन आगे बढ़ सके। इसमें जो ध्यान देने लायक बात यह है कि जो अभी बांग्लादेश में बदलाव हुआ है, उसके बाद नेपाल में जो आज सरकार है, और अभी हाल में ही श्रीलंका में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है, ये भारत की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कॉन्ट्रेरी है। और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि भारत को यहाँ से कुछ चैलेंजेस सामने आएंगे। और क्योंकि वैसे भी जैसे चाइना की तरफ से जो है वो ये चाइना हमेशा मौका देखता है, इस चीज़ को ढूंढता है कि हम कैसे भारत के आस पड़ोस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और हम वहाँ पर अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करें। तो भारत को इस बात के लिए सबसे पहले ये सजग रहना पड़ेगा कि किसी भी कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में या श्रीलंका में या नेपाल में जो है जो हमारे विरुद्ध वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जो कि जियो स्ट्रेटेजिकली या जियो पॉलिटिकली हमें ज़्यादा हार्म करे। तो जो कॉन्फिडेंस है भारत का उन सरकारों के बीच में, उसको और थोड़ा मजबूत करना होगा और जो है उनके साथ हमको रिलेशंस बढ़ाने होंगे। ये हमको ज़्यादा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने एक अभी पहले भी बात की थी कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी तो काफ़ी 90% जो है वो कंट्रीज़ या जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं जियो पॉलिटिक्स के और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स, उन्होंने ये कहा था कि भारत के लिए इसमें अच्छी खासी मुश्किल पैदा होंगी आने वाले टाइम में। किंतु जो भारत की पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट, और उन्होंने जहाँ जहाँ भी हो सका वहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान को मदद देने की कोशिश की, उनको मदद दी, चाहे वो फूड सप्लाईज़ के रूप में हो, चाहे और भी हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन हैं कुछ भी, तो मदद की, तो उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। भारत को अपनी जो ये पॉलिसी है इसको और मजबूत करना होगा, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को। यही एक पॉलिसी है जो चाइना के जो वहाँ पर नेफेरियस डिज़ाइंस हैं हमारे आस पड़ोस में पेनिट्रेट करने के लिए कि जो कोशिश हो रही है चाइना की तरफ से, उसको अगर इफ़ेक्टिवली काउंटर करना है तो पहली बात है कि भारत को कंटिन्यूसली चाइना को एक्सपोज करते रहना होगा। चाइना की तरफ से जो है जो भी इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज़ को जो भी उनको लोन दिए जाते हैं वो एड के रूप में नहीं होते हैं, वो लोन होते हैं। और वो लोन आखिरकार कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान ले लें या कुछ अफ्रीकन नेशंस ले लें, जहाँ पर जो है पहले उनको डेट ट्रैप में जो है उन नेशंस को लिया गया चाइना की तरफ से, और उसके बाद उनके जो वहाँ पर जो एसेट्स हैं उन एसेट्स को कब्जे में ले लिया गया। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है और
और कंट्रीज़ में भी हो रहा है। तो हमें इफ़ेक्टिवली अपने नेबरहुड में जो चाइना इस प्रकार की गतिविधियां बना के रखी हुई हैं चाइना ने, उनको जो है निरंतर हमें इसके बारे में अवेयर करते रहना होगा और उनको भी वो खतरा हमें दिखाना होगा कि देखिए, अगर आप चाइना की झोली में जाते हैं तो आपकी कंट्रीज़ का भी, आपकी इकोनॉमी का भी और आपके जो सोशल स्फेयर की भी कंडीशन ऐसी ही हो सकती है जो देश चाइना के आज डेट ट्रैप में हैं। इसके साथ साथ हमें उनको जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हैं, हमारे मिलिट्री रिलेशंस हैं, इनमें से काफ़ी देश जो हैं वो इनके इनके जो आर्मीज़ हैं, जो इनकी मिलिट्री हैं, वो हमारे यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेते हैं, डिफरेंट मिलिट्री कोर्सेज करते हैं। तो वो ये इस टाइप के जो एक्सचेंजेस हैं, इनको हमें और बढ़ाना होगा और हमें उसको कंटिन्यू रखना होगा, ताकि हम जो पॉजिटिव हमारा एक मैसेज है नेबरहुड फर्स्ट का, उसको निरंतर देते रहें और उसके ऊपर हम काम करते रहें। तो जैसा कि जब तालिबान वाली जो बात हुई थी और उसके बाद भारत ने उसको इफ़ेक्टिवली हैंडल किया, आज की तारीख में जो है उसका असर, कोई भी उल्टा असर भारत में देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट जो तालिबान और भारत के जो रिलेशंस हैं, उनमें कोई भी सोर पॉइंट नहीं है। उनमें अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं होगी अगर, तो भी फिर भी उसमें जो ओवरऑल जो आज की तारीख में टर्म्स और रिलेशंस हैं, वो भारत के लिए अच्छे हैं। ये हमें जो है अपने नेबरहुड में, पाकिस्तान का तो खैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचना मेरे ख्याल से अपना एफर्ट या अपना टाइम बेकार करने वाली बात है। पर उसके अलावा जो हमारे पड़ोस में बाकी नेशंस हैं जो सार्क का हिस्सा हैं, सार्क आज की तारीख में तो फंक्शन नहीं कर रहा है, बट जो सार्क का हिस्सा है, भूटान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जिन देशों का मैं नाम लिया हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसको और ज़्यादा मजबूती देनी होगी और बल देना होगा, ताकि हम जो अपना ग्लोबल फुटप्रिंट है, उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करते रहें कि हम रीजनली और नेबरहुड में भी जो हमारी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर है, उसको हम और मजबूत करें और हम जो है एक स्टेबल इन्वायरमेंट ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने आस पड़ोस में भी बना कर रखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।